हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक और बेहतरीन नया स्टॉक लेकर आया हूँ जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, डीप डाइव करेंगे। तो उससे पहले जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जो है आप उसमें गो थ्रू कर लीजिए। तो जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन के बाद में जो है ये जो कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स जो है ऑलरेडी जो है अपने ऑल टाइम हाई से करीबन करीबन जो है 45% के आसपास में जो है वो ऑलरेडी डाउन है। अभी जिस लेवल पे मिल रही है वो समवेयर अराउंड 650 के आसपास में मिल रही है। और एक रिपोर्ट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जिसमें इन्होंने जो है टारगेट दिया हुआ है 831 का, समवेयर अराउंड 28% अपसाइड जो है इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये 12 मार्च काफी रिसेंटली जो है ये इन्होंने रिपोर्ट बनाई है। तो इसके बारे में जो है हम एक बार डीप डाइव कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि टाटा मोटर जो एनालिसिस जो हुई है उसका टेक अवे क्या करेंगे। वी अटेंडेड द टाटा मोटर्स एनालिसिस मीट फॉर द JLR business. The US continue to do well alongside a recovery green shoot in the EU market. TTMT maintained its EBIT margin guidance of 10% for Q4 financial year 2025. In its Indian PV business, the company has planned multiple launches across powertrain, including a Syria and Harrier, and a reporting of a Cub and Altroz. In its Indian CV business, TTMT is focusing on overhauling its SCV business by tending to key issues with its recent stock price correction. We upgrade the TTMT to buy from add with a stop basis unchanged TP of 831 target price, implying 11x 2.4x फाइनेंशियल 2027 ई इंडिया JRD EV EBITDA। तो ये जो है ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी जो है इनके जो गाइडेंस वगैरह वो अच्छे हैं। तो आने वाले टाइम में ट्रेलिंग मंथ में जो है ये आने वाले टाइम में अच्छा करने वाले हैं। और इसमें जो है कुछ जो है ये लॉन्चेस वगैरह भी हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में जो है इनका अच्छे से जो है बिजनेस में जो है इम्पैक्ट भी करेगा। ठीक है, अडॉप्टिंग रेट ऑफ EVs हैज बीन स्लोइंग डाउन। EU is the process of relaxing the emissions norms and UK may follow suit. TTMT markets the street in China's market as a crystal rather than structural. JLR has performed better than industries with a relative lesser decline. US market is holding up well alongside some signs of recovery in EU. The company expected to see a strong growth continue in a near term. Defender Octa launches recently has been robust response, especially in the market like the Middle East. TTMT has a clear strategy on vehicle architecture, providing seamless transactions to EVs depending on end market response. The company shall accordingly work with our ICE and EV offering. TTMT remains confident of meeting its quarterly for financial 2025 JLR EBIT margin guidance of 10% as highlighted in Q3. JLR margins were impacted by a higher VME and warranty cost. The company expected both these costs to start coming off during a CY 2025. TTMT expects capex to continue in the GBP 3 billion to 3.5 billion range and peak in financial year 2025. Notices it expects capex to be lower in financial year 2027. The company is confidential of being a net debt free even during financial year 2026. In its Indian business, TTMT is working on repositioning Altroz and Curve in coming months. It plans to launch a Harrier EV over the next few months and Syria ICE during the festive season. Over the last couple of years, the company is expand its sales outlet. It is now focusing on a commensurate expansion of a service outlet which should address a service issue at a dealer level. In its Indian CV business, TTMT is focusing on SCV segment to recover lost market share. तो ये जो टाटा की जो कंपनी जो है ये फोकस जो है वो आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने सर्विस सेंटर को जो इंक्रीज़ करने में भी कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स डेटाज जो है वो हम आगे आने वाले टाइम में इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको जो है एक तरफ से जो है ये हम गो थ्रू कर रहे हैं ओवर द प्रेजेंटेशन जो है ये आप देख लीजिए। और प्रेजेंटेशन में जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह ये हम जो है आगे आने वाले टाइम में देख लेंगे। ठीक है, ये इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह है। तो ये जो है इसका रिपोर्ट्स जो है ये बनी हुई है। ठीक है, तो अब जो है इसके बारे में टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में जो हम एक बार पढ़ लेते हैं। टाटा मोटर जो है ये ग्रुप कंपनीज है, लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, पार्ट ऑफ अ इंडस्ट्रियल मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट द टाटा ग्रुप। इट ऑफर्स अ वाइड एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कार्स, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेज एंड डिफेंस व्हीकल्स टू द वर्ल्ड. It has operation in India, UK, South Korea, South Africa, China, Brazil, Australia, Solanki through a strong global network of subsidiaries, associate companies and joint ventures include a Jaguar and Land Rover in the UK and a Tata Devo in South Korea. की पॉइंट्स अगर देखा जाए तो Jaguar and Land Rover से जो है Land Rover से जो है 71% जो है इसका जो बिजनेस आता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो 71 से जो है 67% हुआ है। इन फाइनेंशियल ईयर 2022 से 25 में जो है ये जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है। द कंपनी ऑफर्स अ प्रीमियम लग्जरी व्हीकल्स थ्रू अ Jaguar and Land Rover which is acquired in 2008 for $2.3 billion. The Jaguar brand offer a luxury sedan, electric vehicle and sports car while Land Rover focus on SUVs and off-road vehicles. होलसेल अगर वॉल्यूम देखा जाए तो यूनिट्स में तो रेंज रोवर की जो
है वो 161.3 है इन 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 वर्सेस 2011 इन फाइनेंशियल ईयर 2024। डिफेंडर की जो है 93.9 इन फाइनेंशियल ईयर 2025 है वर्सेस 114.6 इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये जो है आप ये देख रहे हो कि जो डिफेंडर की जो वॉल्यूम जो है अगर फाइनेंशियल 2025 में वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। रेंज रिवर की जो वॉल्यूम जो है वो भी जो है आपको 201.1 से जो है वो 161.3 में जो है वो भी डिक्रीज हुई है। डिस्कवरी की अगर हम देखेंगे तो 24.5 इन 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में वर्सेस 36 इन फाइनेंशियल ईयर 2024 है। जगुआर की अगर हम देखेंगे तो 19.8 है वर्सेस 49.6 इन फाइनेंशियल ईयर 2024। 24-25 में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इनके वॉल्यूम्स वगैरह जो है वो गिरे हुए हैं। दिस इज़ द वन रीज़न कि ये जो स्टॉक जो है ये काफ़ी जो है ऑलरेडी अभी आपको टूटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है अगर जो है होलसेल वॉल्यूम जो है ये हमने देखी है। ज्योग्राफिकल वाइज अगर हम देखेंगे तो होलसेल वॉल्यूम मिक्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका से जो है सबसे ज़्यादा बिजनेस आ रहा है 33%, यूके से 19, यूरोप से 18, चाइना से 13% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 16% का वॉल्यूम आता है। टाटा कमर्शियल व्हीकल में जो है 17% in financial year 2025 versus 19% in financial year 2022. The company is India's largest CV manufacturer with a domestic Vahan market share of 37.7% as of financial year 2025 versus 41.7% as of financial year 2023. It offers a range of products and services across cargo and public transport segments include truck, buses and vans. टोटल सेल्स वॉल्यूम अगर जो है हम अगर डोमेस्टिक में देखें तो HCV ट्रक्स जितने भी जो हैं उसमें 27,130 का जो है इन्होंने बिजनेस करा है 25 में। अगर हम उसको कंपेयर करें तो 29,656 जो था वो उन्होंने Q3 के फाइनेंशियल 24 में करा था। वहीं पर ही जो है ILMCV ट्रक के बारे में अगर हम बात करें तो 15,897 जो है इन्होंने यूनिट्स का जो है बिजनेस करा है, जबकि अगर उसको हम कंपेयर करें तो 15,411 करा था फाइनेंशियल 2024 के Q3 में। पैसेंजर कैरियर्स में जो है 10,001 का जो है वॉल्यूम है, जबकि इसमें पहले जो है 7,701 का वॉल्यूम आता था, तो यहाँ पे जो है कुछ इंक्रीज देखने को मिला हुआ है। वहीं पर ही SCV कार्गो एंड पिकअप में देखा जाए तो 38,232 का जो है ट्रांजेक्शन्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुई है, जबकि पहले जो है 38,964 का जो है वो ट्रांजेक्शन हुआ था फाइनेंशियल 2024 में। इंटरनेशनल बिजनेस में देखा जाए तो 4,510 जो है Q3 फाइनेंशियल 2025 में बिजनेस हुआ है, जबकि लास्ट ईयर 2024 में जो है ये 4,791 का जो है बिजनेस था। तो मोस्टली ऑफ द एरिया में जो है हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। टाटा पैसेंजर व्हीकल जो है वो 11% जो है वो फाइनेंशियल 2025 में था वर्सेस 11 ईयर 2024, मतलब ये सेम रहा है। द कंपनी पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो कंप्रोमाइजेस सेडान, SUV, इलेक्ट्रिक व्हीकल एटसेट्रा। इट रैंक्स द थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया सेक्टर, होल्डिंग अ 13.3% डोमेस्टिक वाहन मार्केट शेयर इन फाइनेंशियल 2025 विद अ 53% इन EV वाहन मार्केट शेयर इन Q3 फाइनेंशियल 2025। तो ये जो है अगर आप जो है EV में जो है अगर आप डील करना चाहते हो तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा प्रॉक्सी है, क्योंकि जो है EV में जो है इसका 53% मार्केट शेयर है इंडिया में 4 व्हीलर में। एडिशनल इट हैज़ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट PV सेल्स नेटवर्क एंड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद 18,100 स्टेशंस इन फाइनेंशियल 2025 Q3। द कंपनी लॉन्चिंग 2025 त्यागो EV टाइगोर विद अपडेटेड टेक डिजाइन एंड कलर। टोटल सेल्स वॉल्यूम की अगर बात करें तो डोमेस्टिक में जो है EV को मिला के जो है 1,39,424 की जो है इन्होंने Q3 फाइनेंशियल 2025 में ट्रांजेक्शन करी है, एज कम्पेयर टू अगर हम फाइनेंशियल 2024 से करें तो वो बड़ी हुई है, जो कि फाइनेंशियल 2024 में 1,37,875 के आसपास में ट्रांजेक्शन होती थी। EV को अगर हम इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो 16,119 ट्रांजेक्शन हुई हैं इन फाइनेंशियल 2025 के Q3 में। अगर इसी को हम कंपेयर करें तो Q3 फाइनेंशियल 2024 में जो है 15,232 करोड़ का, तो EV में जो है इसका जो है ट्रांजेक्शन्स जो है वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रही हैं। अदर देन 1% इन फाइनेंशियल 2025 वर्सेस 3% इन फाइनेंशियल 2022, द कंपनी ऑफर्स व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विसेज थ्रू इंडिपेंडेंट डीलर्स एंड अ ब्रांच नेटवर्क। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड 17,884 करोड़ एंड 18,334 करोड़ इन अ व्हीकल फ्रेंचाइजिंग इन इंडियाज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड फाइनेंशियल 23 रिस्पेक्टिवली। ज्योग्राफिकल स्प्लिट अगर देखा जाए तो इंडिया से 29% है, USA में 15%, चाइना में 13%, यूरोप में 13% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 50% का जो है इसमें ट्रांजेक्शन होती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर बात करी जाए तो 25 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हैं, जो कि इंडिया, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड UK सब में जो है इनकी ट्रांजेक्शन हुई है। और वहीं पर ही जो है अगर हम कैपेक्स की बात करें तो कंपनी हैज़ अ टारगेट टू स्पेंड 8,000 करोड़ ऑन कैपेक्स इन फाइनेंशियल 2025 विद 6,000 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड ऑन फाइनेंशियल 2025 टिल 9 months. In September 2024, it inaugurated a new vehicle manufacturing facility at Tamil Nadu. Also, R&D की अगर बात करें, the company has operated 9 R&D centers focused on developing advanced safety technologies, including ADAS,
driver health monitoring system and connected vehicle platform. In financial year 2024, its R&D expenditure occurred to 6.7% of revenue versus 5.5% in financial year 2022. तो R&D में जो है ये काफी अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं इन्होंने, जो है काफी परसेंटेज बढ़ा भी है, 5.5 से 6.7, मतलब ऑलमोस्ट 1.2% के आसपास जो है इन्होंने अपना एक्सपेंस भी बढ़ाया हुआ स्पेसिफिक टू R&D. द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड 670 पेटेंट एंड 424 डिजाइन एप्लीकेशंस. डीमर्जर के बारे में अगर बात करें तो द बोर्ड अप्रूव्स अ डीमर्जर टू क्रिएट टू सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज, द वन डेडिकेटेड टू द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस एंड द अनदर passing the passenger vehicle segment including PV, EV and JLR. The transition is expected to be completed by October 2025. तो ये जो है आने वाले टाइम में जो है ये भी चेंजेस होने के चांसेस हैं. ठीक है, तो अब जो है इसको जो है हम एक बार जो है इसका फाइनेंशियल्स वगैरह देख लेते हैं. तो टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप जो है वो 2,41,302 करोड़ है. करंट प्राइस जो है 656 के आसपास में चल रहा है, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू 663 से भी जो है काफी डाउन चल रहा है, मतलब थोड़ा सा मार्जिनली डाउन है, बट जो है एक अच्छे प्राइस में जो हमें ट्रेड करने को मिल रहा है. अब हाई जो है इसने अभी जो बनाया था वो 1179 का बनाया था. अभी जो प्राइस चल रहा है 656, जो कि 44.5 मीन्स 45% डाउन के आसपास में चल रहा है. इसका वो स्टॉक का पी देखा जाए तो वो जो है 7.58 है. वहीं पर इंडस्ट्री का जो पी जो चल रहा है वो 18 है, तो इंडस्ट्री पी से जो है काफी डाउन के लेवल में हमें देखने को मिल रहा है. वहीं पर जो है इसका जो प्राइस टू बुक जो है 2.39 के आसपास में मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का जो बुक वैल्यू है वो 4.8 है. पैग रेशियो जो है पीई डिवाइड बाय ग्रोथ को अगर हम देखें तो 0.08 है, 1 से कम है, तो काफी बेहतरीन लेवल पे है. डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई है 1.05, लेकिन इसका इंटरेस्ट कवरेज जो 5 के पास में है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा. आरओसी और आरओई जो है वो बेहतरीन है. आरओसी 20 और आरओई जो है वो 49.4% के आसपास में है, जो कि काफी बेहतरीन माना जाएगा. तो पार्टरिस्टिक स्कोर जो है वो 8 है आउट ऑफ 9, तो ये जो है काफी बेहतरीन जगह में हमें ये भी देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पे इसका प्राइस का अगर हम देखें तो इसने जो ऑलमोस्ट जो हाई जो बनाया था 1161 से अभी जो है हमें 200 मूविंग डेज से भी जो है काफी नीचे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है. वहीं पर अगर इसका पीई को अगर मैं 5 साल 3 साल और अगर 1 साल में देखूं तो जो इसका जो मीडियन है वहां से हमें कम ट्रेड होते हुए देख रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है. वहीं पर प्राइस टू बुक में अगर मैं 5 साल 3 साल और 1 साल में देखूं तो उसका जो मीडियन जो है मीडियन से हमें काफी कम लेवल पे देखने को मिल रहा है. तो हमने जो इसको दो तरीके से हमने देखा, एक तो हमने इसके खुद से हिस्ट्री की वैल्यूएशंस 5 साल 3 साल 1 साल पीई और पीवी से कंपेयर करा, हमें मीडियन से कम में मिल रहा है. लाइक वाइज जो है हमें जो है सेक्टर से भी जो है अगर हम इसके कंपेयर करें दूसरे कॉम्पिटिटर से तो पीई और पीवी दोनों ही पैरामीटर्स में जो है ये हमें काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें अभी जो है इस टाइम में देखने को मिल रहा है. वहीं पर इसके प्रोज एंड कॉन्स अगर देखा जाए तो कंपनी ने जो है रिसेंटली रिड्यूस डेट करा है. कंपनी जो है लास्ट 5 साल का सीएजीआर देखा जाए तो 93.1% के हिसाब से ग्रोथ करा है, विच इज फैंटास्टिक. अगर कॉन्स देखा जाए तो टैक्स सीम्स जो है वो लो है. प्रमोटर ने जो है अपनी प्लेज होल्डिंग जो है वो जो है 3 साल में जो है -3.83% से जो है उसने रिड्यूस करी है. पीएस कंपैरिजन अगर हम देख लें तो पीएस में इसके जो है टाटा मोटर्स जो है उस वो जो है अभी 45% जो है वो टूटा हुआ. वहीं पर ओलेक्ट्रा 53%, एसएमएल जो है 54% टूटा हुआ, अशोक लेलैंड जो 25% टूटा है. पी में देखा जाए तो एक सबसे अच्छे बेहतरीन लेवल पे है, जितने भी इसके पीएस में उसमें सबसे अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है. पैग रेशियो अगर देखा जाए तो ये भी जो है जितने भी इसके कॉम्पिटिटर हैं उसमें से जो है सबसे बेहतरीन लेवल पे नंबर 1 में ये जो है खड़ा हुआ हमें देखने को मिल रहा है. आरओई अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो है अशोक लेलैंड का है 15 का, उसके बाद में जो है इसका 14.63 है, ऑलमोस्ट 1% 1 नंबर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू अशोक लेलैंड, बट ये सेकंड नंबर में है, तो इसमें भी जो है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है. वहीं पर ये आरओसी अगर देखा जाए तो वहाँ पे सबसे ज्यादा ओलेक्ट्रा का है, उसके बाद में अशोक लेलैंड का है, और उसके बाद में आरओसी जो है हमें इसका भी टाटा मोटर का भी अच्छे लेवल पे ही देखने को मिल रहा है. सेल्स अगर 3 साल का अगर देखा जाए तो 20% से जो है वो सीएजीआर से ग्रोथ करा हुआ है लास्ट 3 साल में. वहीं पर अगर इसको हम कंपेयर करें इसके दूसरे जो पीयर्स हैं तो उसमें जो है ये सबसे कम ग्रो करा है सेल्स में, लेकिन अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये हमें काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिल रहा है. वहीं पर करंट मार्केट टू बुक वैल्यू भी अगर हम देखें तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है, 2.39% के आसपास में इसकी जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है. इसमें एक छोटा सा कंसर्न ये भी है कि लास्ट जो क्वार्टर है विच इज दिसंबर, वहाँ पे जो है एचएनआई ने जो अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का किया हुआ है 1.42 के आसपास में. ठीक है, वहीं पर क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देख लें तो रिजल्ट जो है वो किस तरीके से जो है तो 72,000 करोड़ का जो बिजनेस जो कर रही थी अभी जो है वो हाईएस्ट एवर जो है इसने बिजनेस करा हुआ दिसंबर में, विच इज 1,13,000 करोड़ 575. और वहीं पर जो इसका जो नेट प्रॉफिट जो है ये आया है 5,578 करोड़ का. इसमें जो है एक्सेप्शनल जो है इसने बिजनेस जो है मार्च 2024 में करा था, जिसमें 17,530 करोड़ का जो है इसने बिजनेस करा था. यहाँ पे जो है सबसे मेजर रीजन हमें जो देखने को मिल रहा है, एक तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है जो 14% से जो है वो घट के 11% के आसपास में आ गया है, और इसके अलावा जो है हमारा यही जो है मेजर रीजन हमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफी रिड्यूस हो गया है, 14-15% से जो है वो 11% के आसपास में है.
लेकिन अगर हम इसके पीछे का अगर हम देखें तो ये 3%, 7%, 12% के आसपास में भी रहता था। तो अभी जो है एक एवरेज लेवल के पास में ही है। इवन कि मैं ये बोलूँगा कि ये जो 15% का जो आया था, ये एक एक्सेप्शनली जो है ये काफ़ी आउट परफॉर्म्स वाला जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन ये जो है 11% जो है एक रीजनेबल है, अगर मैं इसको जो है पीछे से अगर मैं कंपेयर करता हूँ। वहीं पर अगर हम सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो है 2013 में जो है 1,88,000 करोड़ का जो बिजनेस कर रहा था, अभी जो है 4,43,000 करोड़ का ये बिजनेस करते हैं। अभी अगर मैं इसको पीछे से कंपेयर करूँ तो हाईएस्ट एवर जो है इसकी जो है 12 ट्रेलिंग मंथ्स की सेल है। और वहीं पर अगर इसकी मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 32,200 करोड़ का जो है इन्होंने जो है बिजनेस जो है नेट प्रॉफिट करा हुआ है। तो ये भी जो है हाईएस्ट एवर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है यहाँ पे जो गैप हमें देखने को मिल रहा है वो आप देखिए कि सेल्स ग्रोथ जो है वो 21% से, प्रॉफिट ग्रोथ 128% से ग्रोथ करा, लेकिन प्राइस जो है वो मात्र 15% से मूवमेंट हुई है। वहीं पर ही जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है सेल्स ग्रोथ 5, प्रॉफिट ग्रोथ 58 और प्राइस जो है वो -31% से टूटा हुआ दिख रहा है। वहीं पर 5 साल में भी जो है अच्छा गैप हमें देखने को मिल रहा है। 8% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 93% का है, लेकिन जो उसके स्टॉक की जो मूवमेंट जो है वो 53% के आसपास में भी है। तो 5 साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको 10 साल में देखें कि सेल्स ग्रोथ जो है वो 7% से ग्रोथ कर रहा है CAGR से, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 8% CAGR से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जो स्टॉक की जो मूवमेंट है वो मात्र 2% से ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 10 साल और 1 साल और 3 साल में जो है एक अच्छा हमें गैप देखने को मिल रहा है जो आने वाले टाइम। तो बैलेंस शीट में जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे इक्विटी कैपिटल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। बीच में यहाँ पे जो है 94,000 का जो रिजर्व जो था वो घट के जो है 59,000 हो गया था। लेकिन अभी जो है अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर जो है हमको जो है रिजर्व जो है इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व के साथ साथ में दूसरी अच्छी बात यह है दोस्तों की CWIP जो है वो 40,000, 31,000, 35,000, 20,000, 10,000 कंटिन्यूसली जो है 10 से 40,000 के बीच में जो है कंटिन्यूसली इनका जो है CWIP है। इट मीन्स कि ये काफ़ी एग्रेसिवली जो है नई फैक्ट्रीज, नई स्टोर, नए सर्विस सेंटर्स वगैरह जो है वो ओपन कर रहे हैं। वहीं पर ही जो है इनकी बोरिंग्स अगर देखा जाए तो जो लास्ट टाइम जो है 146,000 करोड़ जो है 142,000 और 146,000 करोड़ के आसपास में जो है वो घट के जो है वो अभी जो है 1,06,550 करोड़ के आसपास में जो है इनका जो बोरिंग्स वगैरह आ चुकी हैं। तो बोरिंग भी जो है ये रिड्यूस कर रहे हैं और मैनेजमेंट के कमेंट्री के हिसाब से आने वाले टाइम में जो है ये अपनी कंपनी को जो है वो जीरो डेट कंपनी जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो वो आने वाले टाइम में जो है ये भी काफ़ी पॉजिटिव जो है वो देखा जाएगा। वहीं पर अगर कैश फ्लो के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे हमने CFO बाय एपिटा जो है इसका काफ़ी बेहतरीन है, जितना ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं उसी हिसाब से जो है ये कैश भी जनरेट कर रहे हैं। तो इनका जो कैश फ्लो जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, कैश फ्लो जो है अच्छा जनरेट कर रहे हैं। कैश फ्लो से जो है हमें कोई भी दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ जो है ये इन्वेस्टिंग वगैरह, फाइनेंसिंग वगैरह जो है ये करते जा रहे हैं। वहीं पर डेटर डेज जो है वो रिड्यूस हुए हैं, इन्वेंट्री डेज रिड्यूस हुआ है, डेज पेबल रिड्यूस हुआ है और कैश कन्वर्सेशन साइकिल भी रिड्यूस हुआ है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और उसी जो है ये भी 20% के आसपास में दिखा रहा है। इसका एवरेज भी अगर हम देखें तो 21, 22, 21%, 9, 2%, 0%, 6%। तो अभी जो है एक हाईएस्ट वाले जो बैंड के आसपास में है, इसका जो है एवरेज जो है देखने को 17-18 के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो 20 भी जो है हम एवरेज के आसपास में ही जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। सबसे जो ज़्यादा कंसर्न जो था ये शेयर पैटर्न में जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखा रहा था, जिनकी जो होल्डिंग जो है 46-47% के आसपास में जब मार्च 2026 में जो दिखाई हमें देती थी, वहीं पर जो है सितंबर 2024 में जो है ये घट के जो है 42% जो है ये देखने को हुई है। ये जो 42% मीन्स समवेयर अराउंड जो है 4% की जो पोजीशन जो है ये डिक्रीज करी है। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे हुई है। तो FII जो है उन्होंने 18% से लेके जो है 20% की होल्डिंग कर दी है। DIA ने जो है 15.9 से जो है 16% मीन्स 0.2% के आसपास में इंक्रीज करा है। वहीं पर पब्लिक ने जो है 19.3% से जो है वो 20.49 मीन, इसका मतलब करीबन करीबन 1% के आसपास में जो है पब्लिक ने जो है हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पर ये जो है सितंबर से दिसंबर के अगर देखा जाए तो पब्लिक की जो है वो हिस्सेदारी जो है हमें 1% और बढ़ते हुए देखने को मिल रही है 1.5% के आसपास में, जो कि एक नेगेटिव माना जाएगा। वहीं पर जो है DIA ने जो है अपनी पोजीशन को जो है वो हल्का सा जो है वो इंक्रीज करा है 16 से 16.5। बट FII जो है उन्होंने जो है एग्रेसिवली इस स्टॉक में सेलिंग करी है, जो कि 20% के आसपास में, जो 21% के आसपास में उनकी होल्डिंग होती थी उसको घटा के जो है 18.66% के आसपास में इन्होंने जो है होल्डिंग को अपनी डिक्रीज करा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी सारी चीज़ें सही लग रही हैं। कौन कॉल, क्रेडिट और एनुअल रिपोर्ट जो है ये आप जो है इसको डेफिनेटली गो थ्रू करिएगा। इसके अलावा अभी जो स्टॉक जो अभी आपको जो देखने को मिल रहा है वो 2024 में अभी हम हैं। और अगर मैं स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो जो इसने लास्ट जो ये बनाया था 2015 में बनाया था। 2015 से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो 2015 में जो है ये जो सेल्स जो है वो 2,63,000 करोड़ का ये बिजनेस करते थे। अभी जो है वो 4,43,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट जो है 2x के आसपास में ये बिजनेस कर रहे हैं। वहीं पर ही जो है नेट प्रॉफिट ये जो जनरेट करते थे वो 14,000 का करोड़ का करते थे 2015 में। अभी जो है ये 32,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो 2x के आसपास में सेल्स हो चुकी है, 2.2x के आसपास में नेट प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन जो आपको जो प्राइस की जो मूवमेंट जो है वो 2015 फरवरी 2015 के आसपास का हमें आपको देखने को मिल रहा है।
एग्जैक्टली जो है अभी 10 साल हो गए हैं। 10 साल में जो है प्राइस की मूवमेंट हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। 2 बार जो है यहाँ पे आने के बाद में जो है इसने यहाँ पे एक जो है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद में आज जो है ये 45% गिरने के बाद में ये हमें यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, जो कि ये काफ़ी अच्छा जगह है। यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेके जो है आगे की तरफ जो है मूवमेंट वगैरह चालू चालू करे। अभी जो है ऊपर से जो है ये 45% जो है वो डाउन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से नीचे से ऊपर तक की जो है अगर ऑल टाइम हाई की जर्नी देखूँ तो 93.79% के आसपास क्या जो है हमें गेन होने के चांसेस रखते हैं अगर ये ऑल टाइम हाई को अपने टच करता है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में जो इसकी जो डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ पे इसने ब्रेक करके जो है एक इसने यहाँ पे क्लोज दिया है। क्लोज देने के बाद में जो है ये डाउन आया। हो सकता है कि ये नीचे आए, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के मूव ऑन करे, बट जो है ये है कि इसने जो उसका जो डाउन टर्न का जो इसका जो पैटर्न जो था उसको इसने ब्रेकआउट करा हुआ है। और ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखिए कि किस तरीके से आने वाले टाइम में ये मूवमेंट करता है। तो दोस्तों आज जो है हमने टाटा मोटर्स के बारे में पूरी डीप एनालिसिस करी। आज हमने इस पूरी कंपनी के बारे में समझा कि ये जो टाटा मोटर ये जो कंपनी है इसमें जो है ये हमें क्या पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि अगर हम इसको जो है अपने पीयर्स के साथ में कंपेयर करें या फिर इसको खुद की वैल्यूएशन के साथ में हिस्ट्री के साथ में 3 साल 5 साल और 1 साल का अगर हम कंपैरिजन करें तो पीई बेसिस और पीबी बेसिस दोनों बेसिस में जो है हमें ये जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन लेवल पे हमें जो है ये देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन लेवल के साथ साथ में दूसरा पॉइंट ये भी हमें दिख रहा है कि टेक्निकली जो है ये 10 साल पुराना जो ब्रेकआउट जो जो एक हाईएस्ट हाई लेवल इसने बनाया था उसके बाद में उसने ब्रेकआउट दिया था। उस ब्रेकआउट देने के बाद में उस रिट्रेसमेंट लेवल के पास में आ चुका है और डेली जो है उस टाइम फ्रेम को जो है डेली जो ट्रेंड लाइन है उसको भी यहाँ से जो है वो ब्रेक कर चुका है। आने वाले टाइम में जो है ये एक अच्छी मूवमेंट जो है वो देने के जो है पूरे पूरे चांसेस रख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है हमने पूरी डीप एनालिसिस करी है। अपने फ्रेंड्स फैमिली को जो है इस वीडियोस को शेयर लाइक एंड कमेंट करने के लिए जो है बिल्कुल बोलिएगा। अगर आपके कोई डाउट है, अगर आप किसी स्टॉक में जो है चाहते हैं कि मैं वीडियो को मैं कवर करूं तो आप मेरे को बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो है हमें साथ में चलना है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के थ्रू जो है हमें जो है एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक जो है नई स्टॉक नई कंपनीज के एनालिसिस के साथ में जो है मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मंथापा। टेक केयर, बाय बाय।